डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। जैसा कि आप जानते हैं, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो था डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, और वहां पे हमने एक आम रूल स्टडी किया। दैट रूल वाज चेन रूल। चेन रूल इज अ रूल विच enables us to find the derivative of composite function। बाद में हमने उस पर बहुत सारी एग्जाम्पल्स और बहुत सारे क्वेश्चंस किए। Today we have one more important topic from this section, that is differentiation of implicit function. Before coming to this topic, that is differentiation of implicit function, we must know what is implicit function. इससे पहले जो डिफरेंशिएशन हमने की उनमें जो फंक्शंस इन्वॉल्व थी उन फंक्शंस को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शंस। एक्सप्लिसिट फंक्शंस What is an explicit function? An explicit function is a function in which variable y can be completely expressed in terms of another variable x without any complication। यानी एक फंक्शन को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन तभी कहेंगे जब हम वेरिएबल y को कंप्लीटली एक्सप्रेस करेंगे वेरिएबल x में विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन इस फंक्शन को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। और जो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन होती है इसकी जो फॉर्म है वो फॉर्म लाइक दिस, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा यहाँ पे। एग्जाम्पल फर्स्ट, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। This is explicit function. Y is completely expressed in terms of x. Y is equal to sin x. Y is equal to log x plus 1 etc. These functions are explicit functions. Explicit. So what is an explicit function? A function in which variable y can be completely expressed in terms of variable x without any complication. Without any. But there are functions. Implicit function is the opposite of explicit function. There are functions in which it is not possible or it is not convenient to express y completely in terms of x. हमारे पास ऐसी भी फंक्शंस हैं जिसमें ये पॉसिबल नहीं है या ये कन्वीनियंट नहीं है कि हम एक वेरिएबल को कंप्लीटली एक्सप्रेस करेंगे दूसरे वेरिएबल में। ऐसी फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन। ऐसी फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन। और जो ये इम्प्लिसिट फंक्शन होती है ये होती है इस टाइप की, फाई ऑफ एक्स कामा वाई इक्वल टू 0। यानी इम्प्लिसिट फंक्शन की जो फॉर्म है दैट इज फाई ऑफ एक्स कामा वाई इक्वल टू 0। इसमें x और y ऑलवेज कनेक्टेड होते हैं, यानी इनको सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स देंगे। फॉर एग्जांपल, साइन ऑफ एक्स वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्स स्क्वायर plus log of xy plus 2 equal to 0. This is implicit function. This is implicit function. Okay dear? तो ये हो गया explicit function, ये हो गया implicit function. What is explicit function? A function in which variable y is completely expressed in terms of variable x without any complication. What is implicit function? Implicit function is the opposite of explicit function. यानी कि implicit function is a function in which it is not possible, it is not convenient to express the variable y completely in terms of variable x. ये थी examples explicit function की, और ये थी कुछ examples implicit function की। explicit function की फॉर्म क्या होती है? y is equal to f of x. implicit function की फॉर्म क्या होती है? phi of x comma y equal to 0. So this is explicit function, this is implicit function. हमारा टॉपिक क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। अब हमें इसी फंक्शन को जो इम्प्लिसिट फंक्शन है इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है। हम कैसे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे? ओके ओके, दिस इज आवर
implicit function phi of x comma y equal to 0. हमें क्या करना है? We have to differentiate implicit function. अब इसके लिए क्या प्रोसीजर है वो हम यहां पे देखेंगे. तो हमारे पास जो implicit function होगी, पहले हम differentiate करेंगे. We differentiate both sides with respect to x. जो implicit function दी हुई होगी उसको हम क्या करेंगे? We will differentiate. मगर हमें एक चीज का ख्याल रखना है, जब हम implicit function को differentiate करेंगे, you have to keep this thing in mind that differentiation of function of y, इसमें जो y की function होगी उसकी जो differentiation होगी that will be d phi y by dx into dy by dx. By which rule? Chain rule. यानी हमें क्या करना है? हमें निकालना है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन. जो इम्प्लिसिट फंक्शन है इसमें y भी है वेरिएबल और इसमें x वेरिएबल है, दे आर कनेक्टेड. जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि इसमें फंक्शन ऑफ y भी होगी. तो y की डिफरेंशिएशन कैसे होगी? दैट विल बी डन बाय चेन रूल एज एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी, जो हमने लास्ट क्लास में देखा है कैसे हम चेन रूल से डिफरेंशिएट करते हैं. उसके बाद जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे उसके बाद हम कलेक्ट करेंगे वो टर्म्स जिनमें होंगी dy by dx. यानी उन टर्म्स को हम कलेक्ट करेंगे जिनमें इन्वॉल्व होगी क्या? dy by dx. उनको हम लेफ्ट साइड में लेंगे. यानी दोज टर्म्स विच कंटेन dy by dx उनको हम LHS में लेंगे. और इसमें ऐसी भी टर्म्स होंगी जिनमें dy by dx नहीं इन्वॉल्व होगा, तो उनको हम क्या करेंगे? we will transpose them to right hand side. terms not containing dy by dx, इनको RHS में हम लेंगे. ये क्या है? terms containing dy by dx. terms containing dy by dx. ओके जिगर, यानी हमें क्या करना है? जो इम्प्लिसिट फंक्शन है उसको हम दोनों साइड से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. इस चीज का ख्याल रखेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ y जो होगी विद रिस्पेक्ट x दैट विल बी डन बाय चेन रूल. उसके बाद जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम वो टर्म्स कलेक्ट करेंगे जिनमें dy by dx इन्वॉल्व होगा और उनको हम LHS में रखेंगे. और जिन टर्म्स में dy by dx इन्वॉल्व नहीं होगा तो उनको हम क्या करेंगे? वो विल ट्रांसपोज देम टू द राइट हैंड साइड. उसके बाद हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ dy by dx. उसके बाद हम दोनों साइड से डिवाइड करेंगे. किससे? बाय द कोएफिशिएंट ऑफ dy by dx. जो यहां पे dy by dx का कोएफिशिएंट होगा दोनों साइड से उसको हम डिवाइड करेंगे. क्यों करेंगे डिवाइड? उससे हमारा निकलेगा सो वी विल गेट आवर dy by dx. जो हमें dy by dx निकालना था वो हमें मिल जाएगा. दिस इज द प्रोसीजर, दिस इज द एल्गोरिथम, दिस इज द वर्किंग रूल फॉर डिटरमाइनिंग द डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन. डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन. तो इस प्रोसीजर में हमें क्या याद रखना है? जो फंक्शन दी हुई है, जो इम्प्लिसिट फंक्शन दी हुई है, पहले हमें क्या करना है? वी हैव टू डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है कि जो फंक्शन ऑफ y होगी उसकी डिफरेंशिएशन होगी बाय चेन रूल. उसके बाद हम कलेक्ट करेंगे टर्म्स कंटेनिंग dy by dx, उनको हम लेंगे LHS पे. और जिन टर्म्स में dy by dx नहीं होगा उनको हम ट्रांसपोज करेंगे टू राइट हैंड साइड. और लास्ट पे हम क्या करेंगे? वी विल डिवाइड बोथ साइड्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ dy by dx to obtain the required derivative. This is the procedure. Lala Zola Zalio. Example action done. Okay. Let's start. अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे यहां पे जिससे हमें ये रूल क्लियर हो जाएगा. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. शाबाजिगर, यहां पे आप देखिए, आई विल टेक अ फंक्शन x² plus 2xy
plus y cube equal to 42. This is a function. We have to find dy by dx. हमें क्या करना है? You have to obtain dy by dx. ये हमें निकालना है. इसका नाम हम फर्स्ट रखेंगे. तो पहले हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. साइड से डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 42 विद रिस्पेक्ट टू x. नाउ हमने पहले क्लासेस में ऑलरेडी ये स्टडी किया है, दैट इज रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन. तो यहां पे हम रूल करेंगे अप्लाई, डिफरेंशिएशन ऑफ सम एंड दैट इज इक्वल टू सम ऑफ डिफरेंशिएशंस. तो ये बन जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ वाई क्यूब इक्वल टू. नाउ हमें ऑलरेडी ये रूल पता है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0. तो कीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर दैट्स 2x प्लस 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, प्रोडक्ट रूल, x को ऐसे ही रखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx प्लस y को ऐसे ही रखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज 1 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ y क्यूब. ये है फंक्शन ऑफ y जिसका जिक्र मैंने पहले ही किया कि इस चीज को हमें नोट करना है. यहां पे इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y क्यूब. तो यहां पे चैन रूल होगा. y क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगी? 3y स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dy बाय dx इक्वल टू 0. ये हो गई डिफरेंशिएशन. अब हम क्या करेंगे? वी विल कलेक्ट द टर्म्स कंटेनिंग dy by dx. इस टर्म में dy by dx है और इस टर्म में dy by dx है. इनको हम कलेक्ट करेंगे. ये बन जाएगा 2x dy by dx प्लस 3y स्क्वायर dy by dx इक्वल टू, जिन टर्म्स में dy by dx नहीं है इनको ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में, ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में. ये बन जाएगा माइनस 2x माइनस 1. यहां से dy by dx कॉमन, ये बन जाएगा 2x प्लस 3y स्क्वायर dy by dx इज इक्वल टू, यहां से माइनस कॉमन 2x प्लस 1. उसके बाद डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ dy by dx. जो dy by dx का कोएफिशिएंट है उससे हम डिवाइड करेंगे दोनों साइड को. तो ये क्या बन जाएगा? dy by dx is equal to minus 2x plus y divided by 2x square plus 3. This is the required derivative. Okay. Differentiation of implicit functions. प्रोसीजर भी हमने देखा और एग्जाम्पल भी हमने देखा. अब हम एक शॉर्टकट मेथड देखेंगे इसके लिए. शॉर्टकट मेथड टू ऑब्टेन द डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन. ये मेथड ज्यादातर आपको जरूरत लगेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे वहां पे आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं, तो वहां पे आपको ये मेथड जरूरत लगेगा. तो यहां पे हम देखेंगे शॉर्टकट मेथड. Shortcut for obtaining derivative of implicit function. इसमें हम क्या करेंगे? हमारी जो फंक्शन है इम्प्लिसिट फंक्शन, दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन f ऑफ x कामा y इक्वल टू 0. इस शॉर्टकट वे में हम क्या करेंगे? हम कॉन्सेप्ट करेंगे यूज पार्शियल डिफरेंशिएशन का. यानी ये हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो पहले हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट. यानी इस फंक्शन में दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल है y. पहले हम क्या करेंगे? वी विल डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, और जो दूसरा
वेरिएबल y है उसको हम ट्रीट करेंगे बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम कांस्टेंट को ट्रीट करते हैं। तो इसको हम कहेंगे दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, और हम इसको डिनोट करते हैं fx से भी, और इसको हम डिनोट करते हैं डेल f बाय डेल x। तो इसका मतलब क्या हुआ, पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डेरिवेटिव of f with respect to x treating y as constant, treating y as constant। Similarly उसके बाद हम अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे बट विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली ट्रीटिंग x as constant। पहले हमने क्या किया, उसको डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x, y को कांस्टेंट रखा, उसको हम कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, ये हम डिनोट करते हैं fx से भी और डेल f बाय डेल x। उसके बाद हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, x को ट्रीट करेंगे कांस्टेंट, उसको हम कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y, तो हम डिनोट करते हैं बाय fy और डेल f बाय डेल y, मींस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f with respect to y treating x as constant। वहां पे हमने y को ट्रीट किया कांस्टेंट, यहां पे x को ट्रीट करेंगे कांस्टेंट। उसके बाद हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे dy बाय dx, ये होता है हमेशा बराबर माइनस डेल f बाय डेल x डिवाइड बाय डेल y बाय x। वेरी सिंपल। यानी जब भी आपके पास क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, तो वहां पे आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखनी है कि dy बाय dx इट इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स डेल f बाय डेल x डेल y बाय डेल x, डेल y बाय। क्या होता है, कभी इम्प्लिसिट फंक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, तो जब हम सीधे प्रोसीजर जो हमने पढ़ा, जो रूल हमने पढ़ा, उसके जरिए से डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स बनेगी। तो वहां पे हमें जरूरत लगेगा ये रूल dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस डेल f बाय डेल x डिवाइड बाय डेल y बाय डेल x। जैसे मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। ये देखिए एग्जांपल। ओके जी, ये है हमारी एग्जांपल x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये हमारी फंक्शन। यहां पे हम शॉर्टकट वे का यूज करेंगे, यानी पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट यहां पे हम इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। नाउ f ऑफ xy इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर माइनस 2। निकाले पहले डेल f बाय डेल x, partial derivative of f with respect to x, partial derivative of f with respect to x means आपको इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, लेकिन y को ट्रीट करना है कांस्टेंट। y को ट्रीट क्या करना है, तो जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे और सम रूल अप्लाई करेंगे, x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन बन जाएगी 2x प्लस x इंटू वाई, वाई कांस्टेंट है तो ये बाहर निकलेगा, x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज 1 प्लस y कांस्टेंट है तो y स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2 भी कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन भी 0। तो यहां पे आ जाएगा डेल f बाय डेल x इट इज इक्वल टू 2x प्लस 1। सिमिलरली हम निकालेंगे डेल f बाय डेल y। अब कीजिए इसको डिफरेंशिएशन f को, नाउ विद रिस्पेक्ट टू y ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट। अब x कांस्टेंट है, सम रूल अप्लाई कीजिए, जब हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे x स्क्वायर कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी, प्लस x यहां पे कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही रखेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, स्केलर है यहां पे। y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y दैट इज 1 प्लस y स्क्वायर की डिफरेंशिएशन दैट इज 2y और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, तो ये हमारा आ जाएगा x प्लस 2y। ओके मेरा जिगर, तो हमें क्या निकालना है, dy बाय dx। तो हमारा dy बाय dx इज माइनस डेल f बाय डेल x, सो माइनस टाइम्स डेल f बाय डेल x दैट इज 2x प्लस y
y by del x, that is x plus 2. Very simple. This is differentiation of implicit function by using the concept of partial derivative. By using the concept of partial derivative. तो ये था आज का लेक्चर, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन. इंशाल्लाह जो अगला लेक्चर होगा उस पे हम देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट.